Hello, friends, and welcome to this lesson. Now, today I've got something very interesting for you. I've got a task where you have to argue something. Argumentation is nothing but making a point strongly. So, if you want to become a strong speaker, then you have to become good at argumentation. दोस्तों, आज जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं बहस। बहस करना, किसी भी मुद्दे पे बहस करना और अपनी बातों को बहुत स्ट्रांगली पेश करना लोगों के सामने, एक दमदार तरीके से आप अपनी बात कह पाएं। इस तरह से आर्ग्यू करना, इस तरह से बहस करना, बेकार की बहस नहीं जिसमें आप हर बात में कहेंगे कि नहीं आप बेकार की बात कर रहे हैं, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, जैसे हम आजकल टीवी डिबेट्स में देखते हैं। वैसा आर्ग्यूमेंटेशन नहीं, ऐसा आर्ग्यूमेंटेशन कि जो आपके खिलाफ है वो भी कहे कि वाह क्या बात कही है। सो फ्रेंड्स, आर्ग्यूमेंटेशन इज नॉट अबाउट just opposing the other party or just continuing to say that what you are saying is wrong, I don't agree, I don't think this is the way it is, and things of that kind. Instead of that, if you are able to argue your point in such a way that the other person also says, maybe I don't agree with you, but you've made a great point. So that is good argumentation. So friends, let's look at argumentation and let's understand how to create a good argumentation. Now let us first see what argumentation means. Argumentation simply means taking a position on any issue. So you can take any position. You can be on this side or you can be on the other side. You can take a favorable or unfavorable stance or position. And then once you have taken a position, then you have to defend your position through reasons, through evidence, so that the other party or people who are still thinking would be persuaded to start thinking along the lines that you are suggesting. So, when someone argues, he or she takes a strong and definite position, a clear-cut position. You are not on the fence. You are not dilly-dallying. You've taken a clear position on an issue and you are saying that this needs to be done. So you are advising a particular action and you are also going to give reasons and supporting evidence. You are going to give supporting evidence to defend your position and to recommend the particular action. Well, a good argumentation involves considering opposing views. Because if you are able to consider opposing views, then you'll be able to give argument and counter argument for both and convince people to be on your side. So you'll be able to give them a comparison, give them a counter argument, consider opposing views and persuade them that the view that you are advocating is the right view. And friends, while arguing, you must have enthusiasm and energy from start to finish. But you should never become aggressive. You should never become rude. You should never become offensive. दोस्तों, जहाँ तक बहस की बात है, आर्ग्यूमेंटेशन की बात है, तो आर्ग्यूमेंटेशन में हम एक पोजीशन लेते हैं, हम एक तरफ हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैं इस तरफ हूँ और ये मेरे रीजंस हैं, मैं इस चीज़ के साथ यहाँ खड़ा हूँ और ये मेरे रीजंस हैं यहाँ खड़े होने के। और हम उसके बाद अपने रीजंस देते हैं, सबूत देते हैं, अपने कारण बताते हैं। और अगर हम किसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि इस कार्य को ऐसे करना चाहिए तो उसे वैसे क्यों करना चाहिए, इसके लिए हम अपनी बात सबके सामने रखते हैं एक पुरजोर दमदार तरीके से, सबूतों के साथ। हम अच्छे रीजंस, अच्छे कारण देंगे, अच्छे सबूत देंगे और
जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दूसरे लोग कह रहे हैं, उसको भी कंसिडर करके उस पर भी अपने व्यूज़ दे देंगे, तो हमारा आर्ग्यूमेंट, हमारी बहस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वेल राउंडेड हो जाएगी, और लोग हमारी बात मानने पे बाध्य हो जाएंगे। हमें अपना उत्साह और ओजस बनाए रखना चाहिए शुरू से आखिर तक आर्ग्यूमेंटेशन में, लेकिन ध्यान रहे कभी भी हम बदतमीज़ी पे ना उतरें, किसी भी प्रकार के ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें या ऐसे बॉडी लैंग्वेज या कोई और चीज़ जो दूसरों के लिए ऑफेंसिव हो, जो दूसरों को आपत्तिजनक लगे, ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए। नाउ आई हैव अ स्मॉल पैराग्राफ on argumentation which I am going to read. School uniform should be mandatory for all students for a number of reasons. School uniform, जो ड्रेस बच्चे पहन के स्कूल जाते हैं, वो मैंडेटरी होनी चाहिए, आवश्यक होनी चाहिए बच्चों के लिए, वो ज़रूरी कर दी जानी चाहिए, उसके बिना बच्चे को अलाउ नहीं करना चाहिए स्कूल में। क्यों? इसके लिए अब हमने पोजीशन ली पहले सेंटेंस में, स्कूल यूनिफॉर्म शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अब हम इस पे आगे आर्ग्यूमेंट्स देंगे। फर्स्ट, दे मेक एवरीवन इक्वल। इन दिस वे द रिच किड्स आर ऑन द सेम लेवल एज द पुअर वंस। इन एडिशन, getting ready for school can be much faster and easier. Many kids waste time choosing what to wear to school, and they are often unhappy with their final choices. Most important, some studies show that school uniforms make students perform better. दोस्तों, यहाँ इन्होंने अपने रीजंस दिए, एविडेंस दिया। पहला इन्होंने कहा कि अगर सब यूनिफॉर्म में आते हैं, स्कूल ड्रेस में आते हैं, तो गरीब और अमीर के बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होगा। सब यूनिफॉर्म का मतलब ही है एक जैसा, तो सब लोग एक जैसी ड्रेस पहन के आएंगे तो अच्छा रहेगा, सब एक ही लेवल पे होंगे। दूसरी बात, स्कूल के लिए तैयार होने में बच्चों को बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी कि क्या चूज़ करें, क्या पहने, क्या ना पहने, क्योंकि वो होने में बच्चा कुछ पहन के भी जाता है तो भी डिससैटिस्फाइड रहता है, संतुष्ट नहीं रहता, ये मेरी ड्रेस अच्छी नहीं, उसकी ड्रेस ज़्यादा अच्छी, इस तरह की चीज़ें। और ये भी देखा गया है कि जब बच्चे, जिन स्कूलों में बच्चे यूनिफॉर्म में पढ़ते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होती है। नाउ लेट्स गो टू द फाइनल आर्ग्यूमेंट। मैनी पीपल माइट से दैट यूनिफॉर्म्स टेक अवे पर्सनल फ्रीडम, बट आई बिलीव दैट द बेनिफिट्स आर स्ट्रॉन्गर दैन द ड्रॉबैक्स। इमीडिएटली दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा कि बहुत से लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म्स जो हैं वो आदमी की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं, लेकिन स्वतंत्रता थोड़ी सी कम भी हो जाए तो भी इस चीज़ से जो फ़ायदे हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट अ ब्यूटिफुल पैराग्राफ दिस वाज। इट गेव बोथ साइड्स, इट गेव अस अ व्यू, इट गेव अस अ रिकमेंडेशन, इट टुक अ स्टैंड एंड इट प्रूव्ड इट। तो ये होता है आर्ग्यूमेंटेशन। नाउ फॉर दिस लेसन आई एम गिविंग यू अ टास्क, and the task is to create an argument on the topic reality shows are a waste of viewers' time. So on this topic I would like you to give me an argumentation. This argumentation you can create an audio file, you can create a video file, you can create a write up, and please share it with your friends, with your family members. You can send it across to me as well, and yes, try to argue now. दोस्तों, मैं इस बहस के मुद्दे पे आपको लाया हूँ कि रियलिटी शोज़ जो हैं वो जो हमारे देखने वाले हैं दर्शकगण, उनके समय का दुरुपयोग करवाते हैं, उनका समय ज़ाया होता, वक्त ज़ाया होता है, बेकार। और ये रियलिटी शोज़ देखना वक्त की बर्बादी है। तो ये टॉपिक है, इस पे आपको अपने आर्ग्यूमेंट तैयार करने हैं। आर्ग्यूमेंट दोनों साइड हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी रियलिटी शोज़ वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है, या आप कह सकते हैं कि जी ये वेस्ट ऑफ टाइम ही नहीं और भी
बहुत कुछ है. So friends, you can take a stand either way. In argumentation, that is the beauty. So you may say that reality shows are a waste of time, or you may say no, 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 reality shows, my god, they are the best utilization of time. Prove whatever stand you are taking. So I am not having any problem with what stand you will take, but you need to prove your point. You need to argue in a strong way. So friends, thank you very much for watching this lesson. I'll see you in the next. Until then,